शिक्षकगण व मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं आरोही राव इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। न जाने कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने ये अनमोल स्वतंत्रता पाई थी। ये धरती भी हमारी थी, आकाश हमारा था, पर ब्रिटिश के शासन में कुछ भी ना हमारा था। मंगल भगत आजाद सबने लड़ी लड़ाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने ये अनमोल स्वतंत्रता पाई थी। एक समय था जब ये भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, यही देखकर इसे विदेशी हर बार हथियाना चाहता था। अंग्रेजों के छक्के छुड़ाकर लक्ष्मीबाई ने जान गंवाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने ये अनमोल स्वतंत्रता पाई थी। अंग्रेज यहाँ अगर आए थे, उसमें भी कहीं तो कमी हमारी थी। कुछ अपनों के मन में ही बस गई बड़ी गद्दारी थी। उस गद्दारी की बड़ी कीमत हमारे वीरों ने चुकाई थी, अपनी जान गंवाकर आजादी दिलवाई थी। प्रतिवर्ष 15 अगस्त को हम सब झंडा फहराते हैं। आओ याद करें उन वीरों को जिसने अपनी जान गंवाई थी। न जाने कितनी माँओं ने अपने लाल को तिरंगा पहनाया था, तब जाकर मेरे भारत ने ये अनमोल स्वतंत्रता पाई थी। सम्मान करें उस आजादी का जो वीरों ने दिलवाई है। आओ मिलकर हम सब ये बोले, आजादी की बधाई हो, आजादी की बधाई हो। जय हिंद, जय भारत। Next, Divyani Chandele of Class 4B of Primary Section to share a few words on the proud occasion of Independence Day. Good morning, respected headmistresses, teachers, and all my dear friends. I, Divyani Chandele from Class 4B, will speak few sentences on Independence Day. It is a glorious and auspicious occasion for all of us as we celebrate 79th Independence Day of our country. It is a matter of delight and pride when we see our tricolor being hoisted and feel an electrifying energy passing through us and with patriotism. 15th August is an important day in Indian history. It is a day of reflection, gratitude, a day of honor as India got its freedom and how brave people fought for our freedom. It is a time to remember the sacrifices made by the freedom fighters and to celebrate the nation's journey since then. This day is marked by flag hoisting ceremonies, cultural programs and parades across the country. Right from the year of independence, the nation is making progress in various fields such as sports, agriculture, industry, science and technologies. India became the world's fourth largest economy this year, surpassing Japan. It has completed several large-scale infrastructure projects, including expressways, metro lines, airports, etc. Today, on this special day, let's take a pledge and make a promise to ourselves that we will always protect our country by maintaining brotherhood, helping everyone, and educating ourselves. Let's cherish this occasion of national pride and move forward with determination and unity towards a prosperous and brighter India. I conclude my speech by saying, तीन रंग का नहीं वस्त्र, तीन रंग का नहीं वस्त्र, यह ध्वज देश की शान है, हर भारतीय के दिल का यह तो स्वाभिमान है। यही गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। तीन रंगों में रंगा हुआ यह अपना हिंदुस्तान है, यह अपना हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। चीज है तेरे कदम
Day to everyone. Today, we stand here with pride in our hearts and a tricolor in our hands, celebrating 78 years of India's independence. It is a day to remember the struggles, sacrifices, and dreams of our freedom fighters. It is also a day to ask ourselves, what does freedom truly mean to us today? India gained independence on 15th August 1947 after nearly 200 years of British rule. But the story of our freedom wasn't written in comfort. It was written with the blood of revolutionaries, the vision of leaders, and the pain of millions. These heroes may not be with us today, but their courage still echoes in every corner of this land. However, my dear friends, independence is not just about raising the flag or singing the national anthem. It is about ensuring that every Indian, no matter where they live or who they are, can live with freedom, dignity, and opportunity. It means a country where every child gets education, where no woman feels unsafe, where farmers live with pride, and where no one sleeps hungry. It means a nation that is not only free from foreign rule, but also free from poverty, inequality, corruption, and hatred. And who will make this vision a reality? We will, you and I, the students, the youth, the citizens of tomorrow. This is our time to rise, not just in our careers, but in our character, to become not only good professionals, but also good human beings. To build not only big dreams for ourselves, but also a better India for all. This year, India has given the world many reasons to be proud. Today, young Indian woman Divya Deshmukh stands at the pinnacle of global chess, proving that our daughters can conquer any challenge. From India, a rocket engine born of innovation, Agnikul's 3D printed marvel is rewriting India's place in space technology. With a historic rupees 420.6 billion push to make LPG affordable, our government reaffirms its commitment to uplift every household. And the skies demand cleaner fuel. Panipat Refinery's sustainable aviation fuel makes India's green leap in aviation. Under the Make in India campaign, India has focused on increasing exports and reducing imports to strengthen the economy. For example, it has led to record FDI inflows. India has become the second largest mobile phone manufacturer, growth in defense productions, and created employment opportunities. Dr. APJ Abdul Kalam once said, "The ignited mind of the youth is the most powerful resource on the earth, above the earth, and under the earth. We must use this power to change, to create, and to uplift. Study not just to get good marks, but to gain knowledge that helps society. Speak not just to be heard, but to stand up for truth and justice. Act not just for yourselves, but the people around you, your school, your neighborhood, your country. Let's also never forget what makes India truly special, our diversity. We are a land of many languages, cultures, religions, and traditions. Yet, we are one nation. That is our true strength. So today, on this proud occasion, let's not just wave the flag. Let's live by what it stands for. Courage, peace, progress, unity, sacrifice. As I conclude, I leave you with this message. Freedom is not a gift. It is a responsibility. And we must earn it, protect it, and honor it every single day. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. Thank you and Happy Independence Day. हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती
कब आओगे, किधर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। ओ ओ ओ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते हैं, अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते हैं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते हैं, अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं। शहीद जवानों का, अलबेलों का, मुसलमानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मुसलमानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। कुछ करिए, नस नस में बोले, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, कुछ करिए, चल जिद बढ़िए, धूप करिए या मरिए, है और चल जिद बढ़िए, धूप करिए या मरिए, चक दे उलट दे इंडिया, चक दे उलट दे इंडिया, चक दे उलट दे इंडिया, चक दे उलट दे इंडिया। After this melodious performance, we have Mansi Butolia of class 9th B who will share her views through her speech in Hindi. की खुशबू हवाओं में आज भी है, शहीदों का लहू इस जमीन की रग रग में आज भी है। माननीय प्रधानाचार्य महोदया, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हम सभी के लिए गर्व और प्रेरणा का दिन है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजी शासन से आज़ाद हुआ और हमने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। यह दिन हमें न केवल आज़ादी की कीमत याद दिलाता है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि आज़ादी को बनाए रखने और देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अद्भुत साहस और बलिदान का परिचय दिया। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का आह्वान किया और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे वीरों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। लेकिन आज का भारत केवल अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने वाला एक मजबूत राष्ट्र भी है। हाल के वर्षों में हमने चंद्रयान 3 की सफलता देखी, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और ओलंपिक खेलों में नई उपलब्धियां हासिल की। साथ ही वैश्विक परिस्थितियां भी बदल रही हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ लगाना
यह दर्शाता है कि हमें आर्थिक और राजनीतिक मोर्चों पर भी तैयार रहना होगा। कुछ कर गुजरने की ठान ली तो मुश्किल कोई बड़ी नहीं। इंसान वही जो हार मान ले, वह अभी खड़ा नहीं, वह अभी खड़ा नहीं। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम भ्रष्टाचार, पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी और तकनीकी चुनौतियों से निपटें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, साइबर सिक्योरिटी और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भारत को अग्रणी बनाने के लिए हमें मेहनत करनी होगी। आज के समय में हमारा देश प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। हाल ही में उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गांव-गांव में घर, सड़कें और पुल बह गए और कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा। यह घटना हमें याद दिलाती है कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। अब हमारी जिम्मेदारी बन गई है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और संतुलित भविष्य बनाया जा सके। आज के भारत की प्रगति में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी अहम योगदान है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ देश को नई दिशा दी है। हाल ही में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी की, जिससे पूरी दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा और मजबूत हुई। मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देश जैसे फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया से मजबूत रिश्ते बनाए, जिससे व्यापार, रक्षा और तकनीकी सहयोग में नए अवसर खुले। आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों ने देश के युवाओं में नया आत्मविश्वास जगाया है। आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और जैसा कि मोदी जी कहते हैं, जब 140 करोड़ देशवासी एक साथ सपने देखते हैं तो वे सपने केवल सपने नहीं रहते, बल्कि संकल्प बन जाते हैं और संकल्प सिद्धि में बदल जाते हैं। मित्रों, स्वतंत्रता केवल एक उपहार नहीं, बल्कि एक सतत संघर्ष है। अतीत में यह संघर्ष विदेशी शासन के खिलाफ था और आज यह संघर्ष गरीबी, असमानता, प्राकृतिक आपदाओं और वैश्विक दबावों के खिलाफ है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, सदा शक्ति, सदा विजय, सदा ही आनंद। यही है मेरा भारत, यही है मेरा स्वप्न। भारत माता की जय। जय हिंद। धन्यवाद। I invite Anandi Dhote of class 10th to present a speech in Marathi on this glorious occasion. तिरंगा आमचा मान आहे, पराक्रमाचे गाण आहे, भारताची शान आहे, तिरंगा आमचा प्राण आहे। सुप्रभात। सर्वप्रथम आपणा सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आदरणीय मुख्याध्यापिका, शिक्षकगण व विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा दिवस आपल्यासाठी खूप खास आहे। 1947 साली याच दिवशी 15 ऑगस्टला आपल्याला ब्रिटिशांच्या जोखडातून स्वातंत्र्य मिळाले आणि आज आपण 79वा स्वातंत्र्य दिवस साजरा करीत आहोत। हा दिवस आपण आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी दिलेल्या बलिदानाचा आणि त्यागाचा गौरव करण्यासाठी साजरा करतो। स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आपल्या देशाने विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दिशेने अतिशय आत्मविश्वासाने पावले टाकली आहेत। हे केवळ सरकारी स्वप्न नव्हे, तर 140 कोटी जनतेचे स्वप्न आहे। भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी मन की बात हा कार्यक्रम 2024 पासून सुरू केला आहे। मन की बात म्हणजे देशाच्या सामूहिक प्रयत्नांना स्पर्श करणे, देशाच्या कामगिरीचा उल्लेख करणे, लोकांच्या ताकदीची चर्चा करणे हा होय। क्रीडा क्षेत्रात भारताने केलेली प्रगती उत्तमच आहे। नुकत्याच बुद्धिबळ स्पर्धेत देशाचा बुद्धिबळपटू गुकेश डोम्माराजू हा सर्वात तरुण जागतिक बुद्धिबळ विजेता आहे। त्याने 2024 मध्ये जागतिक बुद्धिबळ चॅम्पियनशिप जिंकली, ज्यात त्याने चीनच्या डेन लिरेनचा पराभव केला आणि नुकतीच विजेती झालेली दिव्या देशमुख हिने वयाच्या अवघ्या 19व्या वर्षी महिला ग्रँडमास्टर आणि आंतरराष्ट्रीय मास्टर ही बुद्धिबळात पदवी मिळवली आहे। आणि या गोष्टीचा आपल्याला अभिमान असावा की ती आपल्या नागपूरची रहिवासी आहे। भारताने विज्ञान क्षेत्रात सुद्धा खूप प्रगती केली आहे। नुकतेच भारतीय अंतराळवीर शुभांशु शुक्लाच्या ऑक्सिओम 4 मोहिमेवर आंतरराष्ट्रीय अंतराळ प्रवासासाठी एक मोठे पाऊल असेल। अलीकडच्या वर्षात इस्रोने अनेक महत्त्वाच्या मोहिमा केल्या आहेत, जसे की चंद्रयान 3 चंद्रावर उतरणे, ज्यामुळे भारत प्रगत अंतराळ तंत्रज्ञान असलेल्या काही मोजक्या देशांपैकी एक बनला।
तसेच भारताने गरिबी, अज्ञानता, भ्रष्टाचार, अत्याचार यांच्यापासून मुक्त होण्यासाठी सुद्धा पूर्णपणे प्रयत्न केले आहेत. 2047 साली भारत हा विकसित देश बनेल अशी संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी सांगितली आहे. आतंकवादाविरोधी राबवलेली मोहीम ऑपरेशन सिंदूर सर्वांना ज्ञातच राहिली आहे. मानवतेचा पाठ शिकवणारा परंतु अत्याचार अन्यायाला परखडपणे तोंड देणाऱ्या आमच्या या भारत देशाचा आम्हाला सदैव अभिमान वाटतो. देशभक्तांच्या बलिदानामुळे स्वातंत्र्य झालो आम्ही. कोणी विचारल्यावर गर्वाने सांगतो, भारतीय आहोत आम्ही, भारतीय आहोत आम्ही. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद. भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारत माता की